Hello friends, welcome once again. In today's video, we will discuss some important word problems from chapter 3, class 10th, pair of linear equation in two variables. So, we'll do question number 4, 5, 6 and 7. In earlier video, we had done the question number 1 to 3. Now let us start the question. The question number 5 goes like this. A man walks a certain distance with a certain speed. So question is clear. The first sentence is clear. If he walks half kilometer an hour faster, he takes 1 hour less. अगर यूजुअल स्पीड से हाफ किलोमीटर पर आवर स्पीड वो इंक्रीज करता है तो जो डिस्टेंस कंप्लीट करने में जितना टाइम पहले लगता था उससे 1 घंटा कम लगेगा. सेकेंड केस, इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता है स्टार्टिंग की यूजुअल स्पीड से, ही टेक्स 3 मोर आवर्स. तो पहले जितना टाइम लगता था फर्स्ट वाले केस में उससे 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगा. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल rate of walking. So ultimately we have to find out two variables, that is first is distance and second is the rate of walking, that is the speed. I hope the question is quite clear. Now let us begin the solution. तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उसमें एक मैन है तो एक डिस्टेंस वॉक करता है, डिस्टेंस, और स्पीड उसकी यूजुअल स्पीड है. तो ये आप कंसिडर कर लीजिए. सपोज द डिस्टेंस इज x and the speed is y, both in kilometer and this is kilometer per hour. Okay. Now we know that from the formula of speed is equal to distance upon time. When we rearrange the terms, we will have time as d upon s. So from this formula, we can find out the original time if distance were x and the speed were y. That is your distance upon speed, and so we will have distance x and speed y. So keep this in mind. The original time is your x upon y, because this relationship will be used again and again later words. Now जो आपको इसके बाद केस फर्स्ट जो दिया हुआ था, the case first was if the new speeds becomes half kilometer an hour more than the original one. What was your original speed? That was y. If it becomes half more, so the new speed will be y plus half, and the distance has not been changed, so the distance will remain as it is, that is x kilometer. Now the time for this new scenario t1 will be, once again the formula is d by s. So distance is your x and the time speed has become y plus half. From the question it's been given that if the speed becomes more, then by default the time taken will be less. So the t1, the new time, will be less than the original time, that is t. And how much less? That is 1 less. So the जो पहला वाला टाइम था उससे जो नया टाइम है उससे 1 ज़्यादा होगा, यानी कि जो नया टाइम 1 आवर कम होगा क्योंकि स्पीड हमारी हाफ किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है. So the difference between the original time and the new time is given as 1 hour. तो ये हमारा रिलेशन आया. Now the original time आपको मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है, that is distance upon the original speed was this, and the new time, that is distance is fixed x and the new speed has become your y plus half and this is 1. अब आप इसको सॉल्व करें. क्या कर सकते हैं हम? ऑफकोर्स और कुछ नहीं कर सकते, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम y प्लस हाफ, एंड व्हेन वी डू द
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ इंटू हो जाएगा, डायरेक्टली हम इंटू कर रहे हैं, एंड दिस विल बी योर x by 2, so this is xy is equal to 1. In next step this will go to the right hand side, xy and xy will be cancelled out, so we will have here x upon 2, and when this term gets multiplied and transposed to right hand side, it will become y square plus y upon 2. Further, if this 2 goes to the right hand side, it will become 2y square plus y. So this is our first equation and the first relation we obtained in between x and y. Now after getting this relationship, the case second here is, if the new speed becomes 1 hour less, you must have to recheck in the question. You can see that if he walks and 1 kilometer per hour slower, he takes 3 more hours. जब speed कम हो जाएगा, if his speed becomes less, definitely the time taken will be increased. Sorry, the distance is once again same, that is x. New time taken to cover the same distance from the decreased speed is t2, and we know that by the formula d upon s, distance is your once again x and the new speed is slower one, y minus 1. So in question it is given that from the original speed this t2 will be greater, and the original was your t and greater by 3 hours, the difference must be your 3. So this is the relationship we received. We all know that t2 is this, that is your x upon y minus 1, and t is the original one, the original distance in the original speed, so this is 3. Now we will once again do the rearranging of terms by taking LCM. This is xy minus xy plus x, and this is 3, and next step this will transpose to the right hand side, this will get cancelled out and will remain x is equal to 3y square minus y, and x, this is 3y square minus 3y, and this is your second one. Now dear students, look at this, this is the second one, and first is 2y square plus y was the value of x. From the first and second we have to equate the value of x. So from first, x is your 2y square plus y, and in right hand side will remain 3y square minus 3y. Now on rearranging the terms, you just transpose this whole to the right hand side, so we will have here y square minus 4y is equal to 0. Now the common will be your y minus 4 is 0, so either y is equal to 0 or y is equal to 4. This is the speed we received, 0 and 4. We know that 0 cannot be the speed, so this is ignored. The correct value is 4. So the usual speed is 4 km per hour, and we know that the relationship between x and y is 2y square plus y from the first, or either you can use the second also. I am using the first one because this is the smaller one. So 2 into 4 square plus 4, this is your 2 into 16 plus 4, that is 32 plus 4, it means x is equal to 36 km. So this is the distance we received, obtained, and y, that is the speed, is 4 km per hour. I hope you understood how to do such questions. Now let us move to the next question, that is the question number 5. Question number 5 goes like this. Ramesh travels 760 km to his home, partly by train and partly by car. तो रमेश कहीं अपने घर से दूर है, और जहाँ पे वो अभी है और उसके घर के बीच की जो दूरी है, दैट इज डिस्टेंस इज 760 किलोमीटर. 760 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है. तो कुछ डिस्टेंस तो वो
ट्रेन से कवर करता है और कुछ डिस्टेंस वो कार से कवर करता है। तो फर्स्ट केस जो है, ही टेक्स 8 आवर्स इफ़ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 160 किलोमीटर बाई ट्रेन कवर करता है और रेस्ट 600 कार से ट्रेवल करता है, देन ही टेक्स 8 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज ही टेक्स 12 मिनट्स मोर। जो पहला केस आपका 8 था, उससे 12 मिनट मोर टाइम लेता है इफ़ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट दैट इज 520 kilometer by the car. Then in this scenario, we'll have to find out the speed of the car and the speed of the train respectively. So let us begin the discussion and the research work. तो देखिए, सपोज ए पॉइंट पे रमेश है और उसको जाना है बी पॉइंट पे, उसका जहाँ पे घर है। डिस्टेंस इज गिवन हियर 760 किलोमीटर। यह आपका टोटल डिस्टेंस हो गया जो कि ए से बी में कवर करना है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड पूछा है, तो ट्रेन की स्पीड x मान लीजिए एंड कार की स्पीड y, बोथ इन किलोमीटर पर आवर आप ले लीजिएगा। अब केस फर्स्ट में आप आ जाइए। केस फर्स्ट में क्या कहा गया है कि ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ट्रेन के द्वारा, दैट इज 160 किलोमीटर एंड बाय कार वो डिस्टेंस है आपका सब्ट्रैक्ट 160 फ्रॉम 760, दैट विल बी योर 600 किलोमीटर। ओके, फिगर में अगर हम देखें तो फिगर में सपोज ये आपका 160 किलोमीटर हो गया, दिस इज बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग दिस इज योर दिस मच इज बाय 600 किलोमीटर बाय कार। ये कार के द्वारा हो गया और ये ट्रेन के द्वारा हो गया। तो टोटल जो टाइम लेता है, टोटल टाइम इज 8 आवर्स। तो टोटल जो टाइम है दैट इज 8 आवर्स है। तो टाइम एक तो देखिए ट्रेन के द्वारा लिया जाएगा, एक कार के द्वारा। इस टाइम को हम T1 मान लेते हैं, इस टाइम को T2 ले लेते हैं। तो बाय सिंपल लॉजिक T1 प्लस T2 will be your 8। अब आप देखिए जो T1 यानी कि टाइम होता है डिस्टेंस स्पीड टाइम के फॉर्मूला से, वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द टाइम विल बी योर डी बाई एस बाई रीअरेंजिंग द टर्म्स। सो यहाँ पे टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो ये T1 जो है ट्रेन का है। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस यू कैन इजीली सी दैट इज 160 and speed of train we have assumed x, this is the T1 and T2 is the distance by car, so the distance is 600 and the speed of the car we had assumed y, so this is x y. Further we have to rearrange the terms. You can see that we can take out some common and 40 will be common here. So here we'll get 4 upon x and here 15 upon y, this will be your 8. When we further rearrange the terms, we'll have 4 upon x plus 15 upon y is equal to 1 upon 5. This is our first equation from the given condition. Now sorry, the second case second, it has been given that the distance was r, a and b. So in second case he travels the distance 240 by car and remaining distance will be, that is 520 kilometer by car. The first one is by train and second one is by car. Okay, and in this second case, that time suppose T1 dash plus T2 dash is 12 minutes more than the first case. The time in the first case was 8 hours and 12 minutes more will be 12 minutes. That we'll have to convert this 12 minute into hours. Now let us do the for the part, that is
T1 plus T2 is 8 plus 12 minute. So T1 is, we know that T1 dash and T2 dash of course here, and we all know that by distance and speed time formula, time is always distance upon speed. So the distance for train in this case is 240 and the speed is x, and distance for car in this case is 520 and speed is of course y. So 8 plus this is 12 minutes, and we all know that how to convert 12 into hours just by dividing it 60. So let us again continue the steps. That is 520 upon y, this can be written as 1 upon 5, so this will be your 41 upon 5. Now from here you just check it out, what are the common factors. So as you can see, the common from 240 and 520 is 40, so here we will remain 6 by x, and here we will have 13 by y, and this is your 41 upon 5. On further solving this, we will have 6 upon x plus 13 upon y is equal to 41 upon 5 into 40, that is 200. So this is our second equation. The first equation you must be remembering the first one. This is your first one, 4 upon x, that was your first one, 4 upon x plus 15 upon y is equal to 1 upon 5. This was your first equation. Now in earlier videos I have told you how to solve or reduce such type of linear equations in pair of linear equations form. So what you will have to do, you will have to substitute 1 upon x as capital A or u or b, whatever you want to take it. 1 upon y will be capital B. When we substitute this, our equation will get reduced in this form. This will be your 4a plus 15b is equal to 1 upon 5, and the second one will be 6a plus 13b is equal to 41 upon 200. You just solve this by using elimination method. Once you obtain the value of a and b, you will easily get the values of x and y. This is for your homework. I hope you will be able to solve this question further on. Now the sixth important question is goes like this: A and B each has some money. Okay, so we have here two variables A and B. A and B are two persons, they are having some money. So let us consider it is having amount x and B is having amount y. Okay, now the first case, if A gives 30 rupees to B. Okay, now A in case first A has given 30 to B, that is 30 rupees has been transferred this side. Okay, once the 30 rupees will be transferred, now the A will have x minus 30 and B will have y plus 30. I hope the picture is quite clear. So this is 30, this is the case first, and it is given that if A gives 30 to B, then B will have twice the money left with A. It means ये है कि जो B के पास अब जो जितना अमाउंट होगा वो A के पास जितना है उससे ट्वाइस होगा. इट मीन्स पहला तो हमने ये ले लेना है कि ये जो B के पास अब जो अमाउंट है वो A के पास जितना अभी है उससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो गया, और ये ट्वाइस होगा. तो ट्वाइस का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो 20 है और ये 10 है, तो ट्वाइस इसको कहते हैं. तो अगर इक्वल करना है तो हमें पता है कि इक्वल करना है तो 2 स्मॉलर वाले में हम इनटू करेंगे. तो सेम यहाँ पे केस आता है. तो आप क्या करेंगे, इसको y प्लस 30 को इसके इक्वल तभी करेंगे जब स्मॉलर में 2 से इनटू करेंगे. सो फ्रॉम हियर विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज y प्लस 30 इक्वल टू 2x माइनस 60, and on rearranging the terms we will have 2x minus y is equal to 90. So this is our
first equation. Now let us move to the second one. What the second condition is there. But if B gives rupees 10 to A, अब second case is like this. Case second, A and B is there. Original amount were X and Y. Now in case the B gives 10 to A, okay, then A will have thrice as much as is left with A. अब यहाँ पे B से A की तरफ 10 रुपीज़ दिया जाता है. देखिए तो अब यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस 10 हो जाएगा. अब ये कह रहा है कि ये ग्रेटर होगा और थ्राइस ग्रेटर होगा. थ्राइस मीन्स 3 गुना. जैसे ये 30 हुआ तो ये 10 हुआ. ओके, तो आप बताइए कि इक्वल करने के लिए अगर 30 और 10 को इक्वल करना है तो किस में हम इंटू करेंगे 3. ऑफकोर्स जो स्मॉलर है उसमें करेंगे तब इक्वल होगा. इसी तरह से इस केस में आप देखें तो ये इक्वल तब होंगे, तो इक्वल तब होगा जब आप स्मॉलर में 3 इंटू करोगे, दैट इज y माइनस 10. ये ऐसे आए, इसको सॉल्व करें तो x प्लस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30. तो यहाँ से आपका ये सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म्स, तो ये हो जाएगा आपका, उधर चला जाएगा, दैट विल बी योर माइनस 40. ये आपका सेकेंड केस इक्वेशन आ गया. एंड फर्स्ट इक्वेशन था आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 90. दिस वाज योर फर्स्ट. आप अब क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. एंड इन दिस वे यू विल गेट x एंड y, दैट इज द ओरिजिनल अमाउंट. आई होप यू कैन सॉल्व द इक्वेशन. नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कंपटीशन में भी बच्चों को काफ़ी पूछा जाता है वर्क डन के क्वेश्चंस. नाउ लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days. ओके, एक पीस ऑफ वर्क है, उसको फर्स्ट कंडीशन में 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर 4 दिन में उस काम को पूरा करते हैं. ठीक है. अगला जो कंडीशन है, द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 men एंड 4 boys. सेकेंड केस में सेम काम है, उसको 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर 3 days में कंप्लीट करते हैं. तो क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man एंड 1 boy टू डू इट. उसी काम को अगर एक आदमी और एक लड़के ये करेंगे तो कितना दिन लगेगा. ओके, तो इसमें देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करना है. तो सबसे पहले आप देखिए वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कोई काम है, फ्लोरिंग का काम है, टाइल्स बिछानी है इस पूरे फ्लोर पे. तो सपोज यहाँ पे किसी एक आदमी को इस पूरे में टाइल बिछाने में फ्लोर में मान लो 5 days लगता है. ठीक है, 5 days पूरे फ्लोर में. तो 1 day का जो काम होगा तो कैसे निकालेंगे आप. तो कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं आपके लिए. 2, 3, 4 और 5 है ना. फ्लोर को हमने 5 में डिवाइड कर दिया. अब मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. एक ये फ्लोर हो गया, दूसरा आपका ये ब्लैक से मैंने दिखा दिया, थर्ड आपका ग्रीन से दिखा दिया, और फोर्थ आपका रेड से दिखा दिया, और फिफ्थ वाइट जो है वो मैं रहने देता हूँ. तो अगर 5 days में वो पूरा फ्लोरिंग करता है तो 5 जो पहला एक दिन में तो ये पार्ट करेगा, दूसरे दिन में ये पार्ट करेगा, तीसरे दिन में ये करेगा, चौथे में करेगा, 5वें में करेगा. तो एक दिन का पार्ट एक दिन में कितना काम करेगा. जो एक दिन का काम होगा बाई फ्रैक्शन से आप समझ सकते हैं 1/5 ऑफ द टोटल वर्क करेगा. इसका टोटल जितना है उसका 1/5 करेगा. 2 days में कितना करेगा, 2 days में करेगा 2, यानी कि 2 से इंटू हो जाएगा 1 day का काम. तो मेन जो कहने का मेरा समझाने का जो बेसिक जो फंडामेंटल है कि जितना दिन में वो एक काम कर सकता है
है ना, पूरे काम को जितना दिन लगाता है उसका एक दिन का काम हमेशा जो होगा वो जितने दिन में वो कर रहा है उसको वो 1/5 हो जाएगा। अगर x डेज में वो पूरा कर रहा है काम को तो 1 डे का जो वर्क होगा दैट विल बी फ्रैक्शनल, दैट इज 1/x। y डेज में कर रहा है तो 1/x। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए हम इसको आगे करते हैं। तो 1 मैन सपोज करो उस काम को x डेज में पूरा कर लेता है जो हमें दिया है। 1 पीस ऑफ काम कुछ भी हो सकता है, बस उसको 1 मानना है हमें। तो 1 मैन x डेज में करता है, तो 1 बॉय सपोज करो y डेज में काम करता है। तो इनका अब 1 मैन का 1 डे का वर्क है ना, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे वर्क दैट इज 1/x। मैंने अभी बताया था क्यों 1/x हुआ। और 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x 1/y, क्योंकि यहाँ से आया है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब देखिए जब मैन एंड बॉयज एक साथ काम करेंगे तो उनका वर्क जुड़ जाएगा। 1 डे का वर्क तो हमें मिल गया है। तो फर्स्ट केस आप क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट केस क्या था, 2 मैन एंड 7 बॉयज वर्क टुगेदर एंड दे फिनिश द वर्क बाय इन 4 days, 2 and 7। ओके, तो 2 मैन एंड 4 बॉय, सो देयर इज 2 मैन एंड 7 बॉयज, 2 मैन एंड 7 बॉयज इन 4 days। तो आप देखिए, तो यहाँ से पहला केस आएगा। तो एक मैन का एक दिन का वर्क है इतना, 2 है तो 2 से इंटू हो जाएगा, मिल के काम कर रहे इसलिए ऐड होगा उनका काम। एक बॉय का एक दिन का काम इतना है, 7 बॉयज को 7 से इंटू कर देंगे। और ये 4 days में काम पूरा कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम 1/4 होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट जो 1/x और 1/y से। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में, केस सेकेंड में आप देखिए, केस सेकेंड में क्या बोला जा रहा है। केस सेकेंड में जो आपको दिया जा रहा है, अब 3 days में कंप्लीट होगा काम, लेकिन बाय 4 मैन एंड 4 बॉयज में। देखिए, तो 4 बॉय मैन एंड 4 बॉयज, तो 4 बॉय मैन, तो एक दिन का तो है 1/x, 4 होगा तो 4 से इंटू कर देंगे। फिर ये मिलके कर रहे हैं, एक दिन का काम जो है बॉय का 1 बॉय का 1/y है, 4 है तो 4 से इंटू हो जाएगा। ये 3 days में काम पूरा करे तो 1 डे में इनका वर्क 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। 1/x को आप और 1/y को इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल ए और बी से। तो थोड़ा सा यहाँ सब्स्टिट्यूशन का काम है, 1/x ए ले लीजिए और 1/y जो है बी ले लीजिए। तो यहाँ से जो आपका रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज 2a प्लस 7b इक्वल टू 1/4। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। और आपका यहाँ से जो आ जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 1/3, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके। आपको पता है कैसे यूज करना है। तो इस वाले में आप 2 से इंटू कर दीजिए। तो 2 से इंटू करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम 4a प्लस 14b इक्वल टू 1/2। और ये नीचे वाला यानी कि ये वाला एज इट इज इसके नीचे लिखिए 4b, ये 1/3। आप इसको माइनस कर दीजिए, साइन विल गेट चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10b हो गया एंड दिस विल बी योर 1/6। तो ये 1/6 हो जाएगा, तो b विल बी योर 1/60। तो b आपका 1/60 आया। और आपको पता है व्हाट वाज योर b वाज योर 1/y, तो 1/60। तो इस तरह से y इक्वल टू 60 days, यानी कि एक जो लड़का है अगर उसी काम को करता है तो 60 days वो लगाएगा। जो आपकी b की वैल्यू आई ये आप यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट वाज योर 2a प्लस 7b होल अपॉन 1 आई थिंक दिस वाज योर 4। सो यहाँ से 2a प्लस 7 इंटू b की जो वैल्यू आई दैट इज योर 1/60 और 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर करेक्टली। तो इस तरह से आप करके सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में आपको पूछा है 1 बॉय और 1 उसका काम, तो आपने बॉय का जो मैन का तो x हो जाएगा और बॉय का y हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द 6 क्वेश्चंस। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो
काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर जो 4 है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो इनकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।